Hello friend. Today we will see designation of refrigerant. Designation means it is one type of nomenclature. In 12th we have seen nomenclature of methane, ethane, etc. Uh, this is a similar process. Means we are giving technical name to the refrigerant. Okay, why it is this name? Because uh, since a large number of refrigerants have been developed over the years, and there is a need to nomenclate or to be nomenclature of that refrigerant. That is why some standard procedure is followed to give specific name to the refrigerant. Okay. This name is denoted by R and followed by unique number. How to find that number we will see in this lecture. Okay. There is a one procedure. Uh, we have two types of refrigerant generally. Uh, Halogen carbon refrigerant means ethane methane based or organic refrigerant and inorganic refrigerant. So process for this nomenclature is different for both type of refrigerant. Organic refrigerant साठी वेगळी process आणि inorganic refrigerant साठी वेगळी process. Clear? So आपण बघू. Fully saturated or halogenated compounds means which contains carbon, hydrogen, chlorine or halogen family चे सगळे मेंबर्स असतील क्लोरीन क्लोरीन वगैरे तर त्या टाईपचे आपल्याला रेफ्रिजरंटला डेझिग्नेट करायचं नाव द्यायचं. ओके, एक बुक मधला वापरतो तुम्ही. डेझिग्नेशन सिस्टम मध्ये आपण रेफ्रिजरंटला एक टेक्निकल नाव देतो. ते नाव आपण आर in terms of R देतो. R आणि followed by number R11, R12, R112. या हे जे नंबर आहेत 11, 12, 114 यांचे एक इम्पॉर्टंट है म्हणजे ते असे वच ठेवलेले नाही. एक प्रोसिजर है. वो प्रोसीजर क्या है हम देखेंगे. जनरली chemical formula of this organic refrigerant is written as CmHnClP F2. Cm means number of carbon atom. How much carbon atom is there? Okay. N means how much hydrogen atom is there. Okay. Hn. Clp means how much chlorine atoms is there. And Q means how much fluorine atom is there. Fluorine and chlorine is halogen family, related to halogen family. So how this generally refrigerant have chemical formula CmHnClP F2. C for carbon, M for number of carbon, H for hydrogen, N for number of hydrogen, Cl for chlorine, P for number of chlorine atom, F for fluorine, Q for number of fluorine atom. Okay, and their mass balance equation is N plus P plus Q equals to 2M plus 2 because carbon has 4 valency, so it can connect with 4 different atoms. So upon that balance equation is there N plus P plus Q equals to 2M plus 2. This is very important. ये इसको आप ध्यान में रखिए. N क्या है? N is number of hydrogen atom. P क्या है? P means number of chlorine atom. Q क्या है? Q ये दो चीजें अगर आपने ध्यान में रखी, ये जनरल फॉर्मूला और बैलेंस आपको इजीली आएगा. Q क्या है? Q is number of chlorine atom. और M क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम. क्लियर? ये दो बातें क्लियर हो गई कि हाउ जनरल केमिकल फार्मूला फॉर हाइड्रोजन बेस्ड कार्बन और मीथेन इथेन बेस्ड रेफ्रिजरेंट CmHnClP F2. उसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है. ठीक, तो M मतलब कार्बन के नंबर ऑफ एटम, N मतलब हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम, P मतलब क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम, Q मतलब फ्लोरीन के, उनका मास बैलेंस इक्वेशन. अब ये जो प्रोसीजर है ये नंबर लिखने की, वो क्या है? Any refrigerant can be written as R M-1 N plus 1 Q. ओके, सपोज हमें किसी एक्स रेफ्रिजरेंट का नॉमेनक्लेचर करना है
तो पहले हम लिखेंगे आर, आर के बाद क्या आएगा m माइनस वन n प्लस वन क्यू। व्हाट इज m? m मतलब नंबर ऑफ कार्बन आइटम, मतलब उस एक रेफ्रिजरेंट में जितने भी नंबर ऑफ कार्बन आइटम है उसमें से एक माइनस कर दो, आपको एक नंबर मिलेगा। ओके, ये बाद में आप एग्जांपल समझ में आएगा। बाद में n प्लस वन, व्हाट इज n? नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम। उस एक रेफ्रिजरेंट में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम है उसमें एक और मिला दो, n प्लस वन। और Q, यहाँ पर P का कोई रोल नहीं है, Q के नंबर ऑफ फ्लोरीन आइटम, जितने भी फ्लोरीन आइटम है उसको आगे लिख दो। समझ में आ गया? अब जीवन कैसे हमारे पास है डाइक्लोरो डाइफ्लोरो। डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मतलब फ्लोरीन के दो, फ्लोरीन को क्लोराइड मीथेन, बराबर। अब फ्लोरीन के आइटम कितने? P इक्वल्स टू 2, डाई डाई मतलब दो, डाई और बाय मतलब दो, डाइक्लोरो फ्लोरीन के दो, डाइक्लोरो फ्लोरीन के दो, मीथेन। नंबर ऑफ फ्लोरीन आइटम कितने? दो। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम इसमें दिए नहीं है। ओके, यू नो दैट n प्लस। अब देखो, अब ये आप बोलेंगे और मीथेन का फॉर्मूला रहता है CH4, तो आप बोलेंगे CH4 तो H4 चाहिए, लेकिन मैंने आपको पहले बताया कार्बन सिर्फ 4 एटम को एक कनेक्ट हो सकता है, बराबर। अब उसमें 2 फ्लोरीन के लिए 2 फ्लोरीन के लिए, मतलब कार्बन की जो वैलेंसी है वो फुलफिल हो गया। कार्बन किसी और को अटैच कर नहीं सकता, मतलब एक कार्बन है यहाँ पर जो 2 फ्लोरीन का एटम पकड़े और 2 फ्लोरीन का एटम पकड़े, इसलिए यहाँ पर H0, ये बात ध्यान में रखो। तो मीथेन देखेंगे बोलेंगे मीथेन का CH4 रहता है, यहाँ पर 4 एनर्जी है, वैसा नहीं। कार्बन 4 के साथ कनेक्ट हो सकता है और ऑलरेडी उसमें 2 फ्लोरीन हाइड्रोजन के लिए जगह नहीं है, बराबर। ये बात क्लियर हो गई? आगे देखेंगे। अब इसमें दिया क्या, क्लोरीन के 2 आइटम है, क्लोरीन के 2 है, मतलब P इक्वल्स टू 2, Q इक्वल्स टू N0। N0 के समय मैंने आपको बताया क्लोरीन के 2, फ्लोरीन के 2 हो गया, तो कार्बन सिर्फ 4 को अटैच कर सकता है, तो हाइड्रोजन के लिए कोई जगह नहीं। हमारे पास बैलेंस इक्वेशन है n प्लस p प्लस q इक्वल्स टू m प्लस 2। ये क्यों निकाल रहे हैं हम? क्योंकि हमें m चाहिए, m यहाँ पर कहीं पर दिया नहीं है। ओके, ऑब्वियसली m वो नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे 2 है, एक कार्बन 2 के साथ अटैच है, बराबर। अगर 2 कार्बन रहते तो हाइड्रोजन क्या होता है। So n plus p plus q 2m plus 2, n0 p2 q2 2m plus 2, हमें मिला m equal to 1, बराबर। समझ में आ गया? नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए? 1। अब हमारा फार्मूला क्या है? m माइनस वन। ये क्या है? m1, मतलब 1 माइनस वन, यहाँ पर आएगा 0। ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है क्या, ये अलग अलग पुट करना। m माइनस वन, यहाँ पर आ गया 0। n की वैल्यू कितनी है? 0। 0 में 1 मिला, यहाँ पर आएगा 1। Q की वैल्यू कितनी है? 2, मतलब ये क्या आएगा? ये 0, ये 1 और ये 2, मतलब आएगा R012। लेकिन जनरली ऐसा प्रोसीजर है कि अगर ये वैल्यू 0 आती है तो ये लिखो मत, तो यहाँ क्या आएगा 1 और यहाँ आएगा 2। तो ये डाइक्लोरो डाइफ्लोरो को हम क्या बोल सकते हैं? R12। देखो, R m की वैल्यू 1 माइनस 1, ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये यहाँ पर 0, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, सिर्फ नंबर पुट किया। m की वैल्यू 0 है, हाइड्रोजन की वैल्यू 0 है, उसमें एक में क्या 1, और Q की वैल्यू 2 है, तो ये हो गया R012। लेकिन ऐसे प्रोसीजर है कि 0 लिखते नहीं, अगर 0 यहाँ पर तो ये R12 होगा। समझ में आ गया? अब दूसरा देखेंगे, डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरो इथेन। डाइक्लोरो म्हणजे क्लोरीन के 2, P इक्वल्स टू 2। टेट्राफ्लोरो, टेट्रा मीन्स 4, क्लोरीन के 4। अब इथेन, इथेन मतलब 2 कार्बन रहते, तो ऑब्वियसली 2 आएंगे। ठीक, नंबर ऑफ एटम होगा, क्लियर? ऐसे हमने सी निकाला, ऐसा ये कुछ कहां पर ऐसा प्लेन सी, इसके इसको 4 जगह पे कोई दूसरे मॉलिक्यूल कनेक्ट कर सकते हैं। ये इथेन है, बराबर। इथेन में तो 2 कार्बन रहते, एक तो कार्बन इस कनेक्ट हो जाएगा, बराबर। ये कार्बन और 3 जगह पे 3 मॉलिक्यूल को कनेक्ट कर सकता है, बराबर।
अब ये देखो, ये दोनों कार्बन ने शेयर किया, बचे कितने, इधर के 3 और इधर के 3, बराबर 6, और ये 4 + 2 6, समझ में आ गया। तो हाइड्रोजन के लिए जाएगा इसलिए इधर में, इधर भी हाइड्रोजन के लिए 0 जाएगा, क्लियर। तो डाई क्लोरो गए, तो समझो एक क्लोरीन एक इधर आएगा, और ये मिक्सर नहीं है, ये तो कट कर दो, और समझो एक क्लोरीन उधर पे, और जो टेट्रा फ्लोरो है, ये हो गया, एक फ्लोरीन हो गया, एक फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, एक फ्लोरीन, बराबर 4 फ्लोरीन 2 क्लोरीन, समझ में आ गया। तो अब क्या दिया था, एक मिनट उसको वापस कर देता, डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरोइथेन, डाइक्लोरो मींस क्लोरीन के 2, तो क्लोरीन नंबर ऑफ क्लोरीन एटम P = 2, और डाइफ्लोरो मींस सॉरी टेट्राफ्लोरो मींस क्लोरीन के 4, तो Q = 4। अब इसमें N0 कैसा है, मैं आपको बताया, ये 2 कार्बन है, ये 2 मिला के 6 के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, 6 ऑलरेडी इधर है, तो हाइड्रोजन की जगह रहेगी नहीं, ये कार्बन 4 के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, एक बात ध्यान में रखना, we know that n plus p plus q equals to pn plus 2 बराबर n0 p2 q4, तो m आएगा 2। अब इस इथेन बोला तो कार्बन 2 आएगी कुछ में, ठीक है। अब अपना फार्मूला देखेंगे, अपना फार्मूला क्या है, r r m - 1, एक की वैल्यू 2, 2 - 1 ये गया 1, ठीक है। n + 1, n की वैल्यू 0, ये 0 + 1 1, तो q की वैल्यू 4, तो आ गया r114, समझ आ गया। तो R114 क्या है, R114 में डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरोजन, उसका रिवर्स भी कर सकते हैं अपन, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये होने के बाद में। अब डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो इथेन, अब इसमें हाइड्रोजन कैसे आया देखो, इथेन है, इथेन मतलब 2 कार्बन है, ठीक है, 2 कार्बन मिला के 6 मॉलिक्यूल को कनेक्ट हो सकते हैं, बराबर। और आपके पास क्या है, डाइक्लोरो मतलब क्लोरीन के 2 आइटम, और ट्राइक्लोरो मतलब क्लोरीन के 3, 3 × 2 5, तो ये कितने कर सकता है 6, तो ऑब्वियस है इथेन है, तो छठा जो रहेगा वो हाइड्रोजन ही रहेगा, बराबर। समझ में आ गया बात, क्लोरीन के 2 और क्लोरीन के 3 2 5, 2 6, एक एक जगह पे बचे, वो कौन ले लेगा, हाइड्रोजन लेगा, क्योंकि इथेन है, बराबर। अब n + q + np + q 2m + 2, तो m की वैल्यू 2, ऑब्वियस है इथेन बोला तो C2 ही आना है, ये बाकी चीजें कुछ भी नहीं, तो बराबर सी m 2 ही आएगा, नंबर ऑफ कार्बन आइटम 2। अब इसको देखेंगे हम, r m - 1, जितने भी कार्बन आइटम है उसमें से इसको दो, कार्बन आइटम 2 है, उसमें से एक माइनस किया 1 आएगा, n + 1, हाइड्रोजन का आइटम अभी इसमें 1 है, उसमें एक और ऐड कर दो 2 हो जाएगा, क्लोरीन के 3 है, मतलब R123 क्या है, डाइक्लोरो इथेन, समझ में आ गया। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा लॉजिकल है, और इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन जाता है, आपको समझ के लेना है, अगर रट्टा मारोगे तो आपको आएगा नहीं, ठीक है। अब दूसरी इसमें देखिए, स्लाइड में क्या दिया है, स्लाइड में आपको R22 दिया था, उसका बताओ अब क्या है, तो हमें क्या मालूम है, ये इसके पहले 0 है, बराबर, इसलिए यहाँ पर लिखा नहीं है, मैंने पहले बताया कि ये 3 डिजिट रहते हैं, अगर पहले 0 है तो वो लिखते नहीं है, बराबर। अब यहाँ पर 2 है, मतलब पहला डिजिट 0 है, ऑब्वियस। अब यहाँ पर इसमें नाम नोटेशन अलग ही है। अब ये 0 क्या है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम -1, मतलब ये 0 क्या मतलब 0 एक में से कितना माइनस किया तो 0 होगा, ऑब्वियस है 1, मतलब कार्बन आइटम कितने इसमें 1, ठीक है। अब 2 क्या है, हाइड्रोजन आइटम +1 अगर 2 से निकाल दो तो हाइड्रोजन आइटम कितने आएंगे 1, 2 - 1 1, और लास्ट में क्या है, फ्लोरीन के आइटम 2, बराबर। अब देखो वो बैलेंस अगर किया हमने ये चीजें डाल के वो पहले फॉर्मूले में, तो क्लोरीन के आइटम हमें 1 मिला,
इसको हम लिख सकते हैं CHClF2। समझ में आ गया? इधर भी करके देखते हैं अपन ना, अगर समझ में आपको तो। अब आपको निकलना है R123 का केमिकल फॉर्मूला रिवर्स ऑर्डर। वन क्या है? वन वन ये वन पहले डिजिट कैसे है? ये -1 बराबर, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम -1 इक्वल्स टू 1 आ गया, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 2, m की वैल्यू 2 हो गया बराबर। अब ये दूसरा डिजिट क्या रहता है? n+1। अब n+1 2 है तो n की वैल्यू 1 है बराबर, n की वैल्यू 2 है। और ये क्या? फ्लोरीन की वैल्यू। तो अगर आप मास बैलेंस करेंगे तो आपको n की वैल्यू p की वैल्यू 2 मिलेगी बराबर। p की वैल्यू 2 मिलेगी तो आप अपने वो जनरलाइज फार्मूला में ये पुट कर दो। m की वैल्यू 2, h की वैल्यू 1, p की वैल्यू 2, 3 बराबर, मतलब Cl2F3। समझ में आ गया? आप मतलब अगर आपको केमिकल फार्मूला मालूम है तो आप उसको इन टर्म्स ऑफ R लिख सकते हैं, या अगर आपको इन टर्म्स ऑफ R मालूम है उसका नाम, तो आप उसका केमिकल फार्मूला भी ढूंढ सकते हैं। समझ में आ गया? बहुत सिंपल प्रोसीजर है इसकी। इसका नाम याद रखने वाली चीजें क्या है? तो जनरल केमिकल फार्मूला याद रखना है, CmHnCl2F3। Cm मतलब m के कार्बन के m नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर एटम, H के n नंबर ऑफ एटम, Cl फ्लोरीन के p नंबर ऑफ एटम, F2 फ्लोरीन के q नंबर ऑफ एटम बराबर। और उसका मास बैलेंस N2+2 क्लियर? ये कैसे निकालते हैं? वो कार्बन के बैलेंस से, जो आपने ज्यादा कुछ लेना नहीं है आपसे, जितना इसका फॉर्मूला याद रखिए। और उस हिसाब से हमने 3 केस देखे, आप घर पे ट्राई करके देखो, अलग अलग इसमें आपको आ जाएगा। समझ में आ गया? ये हो गया हेलोजन बेस और इथेन मीथेन बेस रेफ्रिजरेंट के नॉमेनक्लेचर। दूसरा है फुली सैचुरेटेड हेलो कंपाउंड। सॉरी, इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट के नाम। तो जो इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट है वो आर के बाद 7 नंबर से डिनोट होते हैं। तो इसका कुछ ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, आर के बाद 7 और 7 के बाद जो भी रेफ्रिजरेंट है उसका मॉलिक्यूलर वेट बराबर। अब देखो अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट 17 है। 17 कैसे? अमोनिया मतलब NH3, हाइड्रोजन का एक, तो नाइट्रोजन की 13, तो इसका अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट है 17, तो इसका डेजिग्नेशन आएगा R7। 7 किसके लिए? इनऑर्गेनिक के लिए। अगर कहीं पर भी 7 से स्टार्ट हो रहा है तो समझ लीजिए वो इथेन मीथेन बेस्ड रेफ्रिजरेंट नहीं है, वो इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट है बराबर। 7 से मतलब वो इनऑर्गेनिक है, वो आपको 7 बताएगा और 17 बताएगा उसका मॉलिक्यूलर वेट। सिमिलरली अगर कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 वो कराएगा 16। एक मिनट से निकालना। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 16 है बराबर, मतलब एक मॉलिक्यूल का जो वेट है वो 16 है, लेकिन यहाँ पे 2 है तो 16 32 और कार्बन का 12, 32 + 12 44। क्लियर? O2 ऑक्सीजन नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 16। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है तो 32 हो गए, 16 32, और कार्बन का 12, 32 + 44, मतलब इसका डेजिग्नेशन क्या हो गया? R7। अब देखो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, वाटर का निकालना। मॉलिक्यूलर वेट वाटर का 8 है, जैसे H2O ऑक्सीजन के 16 और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 1 है, लेकिन हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है H2O, तो 2 + 16 18, तो आएगा R718। समझ में आ गया? बहुत सिंपल था। आपको फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ, थोड़ा सा जाता कैसे है।
फिर से आपको थोड़ा सा ये करता हूँ, थोड़ा सा लॉजिकल है और इस एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, फिर ही क्वेश्चन आता है, ऐसा कुछ आपको निकालो निकालो नहीं बोलते, इस प्रोसीजर पूछेंगे, या प्रोसीजर पूछने के बाद किसी एक का डेजिग्नेशन पूछेंगे। तो डेजिग्नेशन क्यों देते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ रेफ्रिजरेंट है, तो वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास दो टाइप के रेफ्रिजरेंट है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में जो इथेन मीथेन बेस है उसका कैसे रहता है, जनरल फार्मूला CmHnClPF2, ये याद रखो, ये और ये दोनों चीज याद रखिए, तो आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत है। CmHnClPF2 और ये उसका मास बैलेंस, और अब ये दोनों मालूम है तो आप डेजिग्नेशन दे सकते हैं R M-1 N+1 Q, मतलब कार्बन -1, हाइड्रोजन +1 और क्लोरीन। क्लोरीन का कुछ भी काम नहीं है, क्लोरीन सिर्फ वो या नंबर ऑफ M या नंबर ऑफ N निकालने के लिए लगता है। ओके, तो R M-1 N+1 Q। जैसे डाइक्लोरो को देखेंगे, डाइक्लोरो मतलब क्लोरीन के दो, हाइड्रोजन का 0 आएगा, तो कार्बन और मीथेन बोले तो एक ही कार्बन है, जो एक कार्बन 4 एटम के साथ कनेक्ट हो सकता है, चार ऑलरेडी यहाँ पर दो, तो हाइड्रोजन का 0 आएगा, और M1 आए तो ये आएगा 1 - 1 0, 0 + 1 1 2, R0 1 2, 0 लिखते नहीं है इसलिए R12। डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरो 2 4, अभी इथेन है तो दो कार्बन आइटम है, दो कार्बन आइटम 6 एटम को कनेक्ट हो सकते हैं, तो 6 ऑलरेडी है तो ऑब्वियस है हाइड्रोजन 0 रहेगा। समझ आ गया? फिर नंबर ऑफ कार्बन आइटम 2 आए, तो इसको लिख सकते 2 - 1, हाइड्रोजन 0 0 + 1, क्लोरीन 4 है, तो R114। अब इसमें P2 Q3 N1 और M2 है, तो उसको लिख सकते R2 - 1 1 + 1 जी R1 2 3, और उसको रिवर्स में भी हम लिख सकते हैं। अब वो R12 का, ये अभी हमने R12 किया, उसका फॉर्मूला ये दूसरा स्लाइड है बच्चों, वही स्लाइड है। ये R1 R12 CCl2 डाइक्लोरो मीथेन R135 आप घर पे कर सकते हैं। 1 मतलब M-1 1 है, तो M की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 कार्बन है। N+1 3 है, तो N की वैल्यू कितनी है 2, तो हाइड्रोजन के 2 आइटम C2H2। अब देखो ये दो मिला के 6 के साथ हो सकते हैं, और क्लोरीन का ऑलरेडी 4 है, उसमें क्लोरीन रहेगा, इसमें रहेगा C2H2F4 हमारी प्रोसीजर से। ठीक है, और R20 को हम कैसे निकाल सकते हैं वो भी हमने देखा। क्लियर? तो ये हो गया सैचुरेटेड और हाइड्रोजनेटेड कंपाउंड, मतलब जो इथेन मीथेन बेस्ड है उसके नॉमेनक्लेचर हमने देखे। अब जो इनऑर्गेनिक है, मतलब जिसमें कार्बन नहीं है, तो उसका कैसे निकालना है, बहुत सिंपल है। आर के बाद 7 लिखो, और 7 को उसका मॉलिक्यूलर वेट लिख दो, वो हो गया उसका डेजिग्नेशन। कुछ फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं। अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट 17 है, तो R717। कार्बन डाइऑक्साइड का 44 है, तो R744। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 है, तो R718 हो गया। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। समझ आ गया? आज हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें सीखी, डेजिग्नेशन ऑफ ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट और हाइड्रोजनेटेड कंपाउंड रेफ्रिजरेंट, और दूसरा इनऑर्गेनिक। ये आपको थ्योरी में पूछा सकता है 5 या 6 या 7 मार्क को, तो आपको आना चाहिए। या कभी कभी आपको 2-3 रेफ्रिजरेंट के नाम देंगे और उसका डेजिग्नेशन पूछेंगे, तो वो भी आपको आना चाहिए। क्लियर? कल हम इसका आगे का पार्ट देखेंगे, वाटर कूलर वगैरह। आज के लिए इतना ही बस। कुछ अगर डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछो, और अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप अलग अलग रेफ्रिजरेंट के डेजिग्नेशन ट्राई करो, बराबर आता है क्या, या डेजिग्नेशन के ऊपर उसका केमिकल फॉर्मूला बराबर आता है क्या। आप 4-5 कर देंगे तो आपको पूरा याद रहेगा। थैंक यू, बाकी कर लेंगे।